Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, so now, in this lecture we will discuss about. So in this session we will discuss about the tutorial 4, which I think I have shared to you. Tutorial 4 is shared to you all. Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay. So today we will discuss about the tutorial 4. Clear? So that is related to unit 4 content. So I'm just sharing that. Just wait, I'm sharing. Is it visible to all of you? Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay. So the content of this particular tutorial is belonging to your unit 4 content, that is network layer exactly. Clear? So in this particular section, we will discuss about the phenomena related to transfer control protocol, internet protocol, something related to network routing, how the packets get routed in the channel. Clear? So before going to discuss the detail of these questions, so I just want to uh, tell you about the topics covered in this particular portions. That is, network routing means we just cover the how the packets get routed from one end to another end. Clear? And this topology is used for the routing process. Clear? As we all know that packet routing is preferred in the network layer protocol, while in case of uh, if you talk about the datagrams, clear, datagram of packets that contains the bits information, that contains the bits, clear, that are transferred from mm, one end to that are transferred from one end to another end, and the congestion may also happen when the packets get transferred from one end to another end. Clear? So I'm just trying to share you the just wait. Is it visible to all of you?
it visible to all of you? Yes, sir. Okay. So this is unit 4 content, clear? So where your tutorial should belong to. Exactly in this particular section, few questions will be from this particular section which we have shared, which I have shared to you. Something related to how the packets get routes from one end to another end. Suppose we have uh, one host that is Alice and it wants to communicate with the Bob. Clear? So Bob is the destination side and Alice is the host side. So the packet will get taken from the upper layer, that is suppose the transport layer, and the network layer will take the packet from the upper layer and it gets transferred to different routers into the path, that is R1, R2, R3, R4. You can see these are the routers through which the packet will get access into the network and then finally goes toward the destination side. Clear? Where the Bob is there and it will just receive the data from the lower side and transfer this data to the upper side. Clearly, it is receiving the data from the physical layer side and it then deliver it to the transport layer side. Clear? So this is the basic functioning of what the processing of what packet transfer system. Clear? Into the network layer. So now one more thing you should know that the packets or datagrams both are carrying the information of the message. Clear? That both may transfer into the system, into the network layer structure. Now the two type of services are there through which they are transferred. First one is the connectionless, another is the connection oriented. Clear? So the datagram may transfer into the connectionless form. Means if you are using the datagram, that may transfer to connectionless services, while the connection oriented services is exactly defined for the packet based network. Clear? So you can see I'm just showing. So packet may carry several bits of information. Clear? So and that information get transferred through bit by bit from one place to another place. Clear? And you should also know that when the information gets transferred from source end to the destination end, bit by bit, clear? If suppose the source have several packets uh, for the transmission, while the destination is exactly having the limited channel access. Clear? Destination is having the limited channel access while the source is continuously transmitting the packet into the channel. So what will happen? After a few time or few duration, you will see that the channel get overloaded or over accessed. Clear? So in that particular case, it the destination or the router will not be able to take care of the packets which are coming out of orders. Means या तो जो जो हमारे out of flow packets आ रहे हैं, जैसे चैनल की कैपेसिटी अगर 10 पैकेट की एट ए टाइम लेने की है, उसको अगर 15 पैकेट मिल जाएंगे तो it will get overloaded. In that particular case, either congestion may happen और the data may get corrupted. Clear? या तो data loss हो जाएगा या congestion हो जाएगा system में. तो इस तरीके से मतलब ये सारी चीजें क्या है, सिस्टम को अफेक्ट करती हैं. क्लियर? इसमें आपका पैकेट लॉस हो जाएगा तो रिसीवर को जो इंफॉर्मेशन रिसीव होगी वो आपकी क्या होगी, या तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जाएगी क्योंकि उसका जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है उसमें से कुछ पैकेट लॉस हो गए हैं ड्यू टू ओवरलोडेड ऑफ द नेटवर्क. क्लियर? तो ये सब चीजों को ही हम लोग इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे. कंजेशन कंट्रोल इज द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द your this particular unit. Clear? Also the question is covered in your tutorial sheet, so we will discuss this. Now as I have already told you that two types of services are there for packet switching. First one is the datagram approach, that is based on connectionless services,
This is the diagram for the connectionless service, how the packet or how the datagram may get access from one end to another end without any connection. Clear? It is a connection-led type of service. Clear? Here you can see, suppose a packet having the datagram 1, 2, 3, 4 on the sender side. You can see this is the sender side, and we have the routers R1, R2, R3, R4 into the path. Clear? So when the information get access from each routers, means router R1, R2, R3, R4, R5, and after receiving to the receiver side, you can see the multiple paths are following. Clear? In particular, connectionless based packet is each packet is following some different type of path. Clear? Means suppose packet, suppose datagram 2 is following what? The The datagram 2 is following what? The router R1, R2, R5, and then goes to receiver side. And datagram 4 and 3 following some other part. You can see datagram 4, 3 as coming from R1, R3, and then R3 to R4 is datagram 3 is going, while R3 and R3 to R4 router datagram 4 is going. So they also following some different paths. Means each datagram is independently treated. Means कोई भी जो डेटाग्राम हमारे जो ट्रेवल कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली ट्रेवल कर रहे हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है. क्लियर? So this type of approach are following the connectionless service. While these are the routing table for the connectionless services. Now the another one is the virtual circuit approach, that is connection oriented service. इसमें क्या होता है कि जो डेटाग्राम होते हैं मैसेज के अंदर वो सेंड जो होते हैं वो वर्चुअल कनेक्शन के थ्रू सेंड होते हैं. इसमें पहले क्या होता है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, देन हमारा डेटाग्राम जो है उस पाथ के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचता है. और जैसा कि कनेक्शन लेस में हम लोग पढ़ रहे थे कि सारे इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे थे डेटाग्राम, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं. मीन्स आगे वाला डेटाग्राम पीछे वाले डेटाग्राम को फॉलो करता है, मतलब सब आपस में लिंक्ड होते हैं, उससे ऑल डेटाग्राम्स विल बी लिंक्ड. तो इस तरह से हमारी ये वाली जो सर्विस है, दिस इज कॉल्ड द पैकेट स्विच नेटवर्क. पहला वाला जो था वो हमारा कनेक्शनलेस सर्विस था, दैट इज बेस्ड ऑन डेटाग्राम अप्रोच. तो ये हमारा पोर्शन है जिसमें कवर करते हैं हम लोग नेटवर्क लेयर के अंदर. नाउ द मेन thing which I want to cover into a tutorial sheet from this particular portion which I have shared, but that are the questions. Clear? So if I talk about the questions, I'm just showing. Now again I am sharing the tutorial sheet. Just see this. The questions which are covered in this particular portion. ये दिख रहा है आपको सभी को? It is visible to all of you again. Miss Akansha Rathore and Akshita Shukla, is it visible? Sir, tube sheet visible. Visible, okay. My voice is also clear? Yes. Okay. Now, if you come to the tutorial, now see that the first question is, what is the difference between a direct and an indirect delivery? Clear? Hope I think we have not discussed here this particular question. Still, I am trying to tell you that in case of direct delivery, what will happen means both the source and destinations are directly synchronized. Clear? Source and destinations are directly synchronized, we can say. Clear? So it means what will happen, as you can understand that what will happen in direct and indirect delivery. Direct comes from
मतलब होता है कि जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है पैकेट का वो होस्ट से कनेक्ट रहता है, इज ए होस्ट कनेक्टेड टू द सेम फिजिकल नेटवर्क। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो हमारे होस्ट है और जो हमारा डेस्टिनेशन है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है। मींस डायरेक्ट वन मतलब एक पैकेट सोर्स ने भेजा, इट विल डायरेक्टली रिसीव टू द डेस्टिनेशन। क्लियर? एंड इनडायरेक्ट में क्या होता है, इट फॉलो सम डिफरेंट पाथ। क्लियर? इनडायरेक्ट डिलीवरी में क्या होता है, इट फॉलो सम डिफरेंट पाथ। क्लियर? द पैकेट गोज फ्रॉम राउटर टू राउटर until it reaches the one connected to the same destination या सेम फिजिकल नेटवर्क जो कि इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो भी हमारा पैकेट होता है वो डिफरेंट राउटर्स के थ्रू होके जाता है। लेकिन डायरेक्ट डिलीवरी में क्या होता है कि जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट है वो उसमें क्या होता है, इज ए होस्ट कनेक्टेड टू द सेम फिजिकल नेटवर्क एज द डिलीवरर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, direct and indirect based delivery. Now the second one is explain the types of data delivery for different layer using suitable diagrams. So I will discuss it in the lecture which जब आपको हम पढ़ाएंगे ये टॉपिक तो इसमें कवर हो जाएगा। What are the different types of data delivery for different layers? Clear? Now the next question is, that is very important, why routing is important in a computer network? This is again a very important question. Why routing is important in a computer network? तो ये क्या अभी मैंने आपको राउटिंग बताया था कि पैकेट जो होते हैं वो डिफरेंट राउटर्स के थ्रू हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, राउटर्स क्या होते हैं, वो इंटरमीडिएट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे स्विच होता है, लैन स्विचेस या वैन स्विचेस। ठीक है, स्विच लगे होते हैं या राउटर्स लगे होते हैं। राउटर क्या करता है, एक जगह से डेटा लेता है दूसरे एंड की तरफ कन्वे कर देता है। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ राउटर और स्विच। क्लियर? तो हमारे कहने का मतलब है, व्हाट इज द रूल ऑफ राउटिंग इन द कंप्यूटर नेटवर्क? कैन एनीवन एक्सप्लेन? राउटर जो उसको एक्सेस करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, दैट आर राउटर, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ राउटिंग? एनीवन कैन एक्सप्लेन? Can anyone explain what is routing? Hello? देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिलीवरी मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट डिलीवरी में क्या होता है, होस्ट और डेस्टिनेशन सेम नेटवर्क में होने चाहिए। इनडायरेक्ट डिलीवरी में होस्ट और डेस्टिनेशन सेम नेटवर्क में नहीं होते हैं, वो अलग अलग नेटवर्क में होते हैं। उसको इनडायरेक्ट डिलीवरी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बताया था, टाइप्स ऑफ डेटा डिलीवरी फॉर डिफरेंट लेयर्स, ये हमने बताया आपको, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस इट। And this third question is, why routing is important in computer network? Can anyone explain why routing is important? Hello? No one can explain. Am I audible to all of you? Am I audible to Yes, all sir, of you audible. properly? Yes, sir, audible. I have just told you about the routing of the packet. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक हमने आपको पीडीएफ शेयर किया था नेटवर्क लेयर में कि कैसे हमारे पैकेट रूट होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ थ्रू डिफरेंट राउटर्स व्हिच आर वर्किंग एज ए स्विच इनटू द मीडियम, जो स्विच की तरह काम करते हैं। वहां पे पैकेट जाता है एक राउटर से दूसरे राउटर पे, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर पे। राउटर एग्जैक्टली क्या करता है, राउटर जो भी पैकेट उसके पास आता है उसका सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करता है।
इज इट क्लियर? सोर्स एड्रेस क्यों देखता है कि वो कहाँ से आया है और किधर की तरफ जाना चाहता है। जब उसको डेस्टिनेशन एड्रेस पता चल जाएगा कि ये एड्रेस इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, कोई भी डेटाग्राम या पैकेट जो भी ट्रांसमिट होता है सोर्स से, उसमें एक हेडर लगा होता है, ठीक है। हेडर में हमारे पास सोर्स एड्रेस भी होती है और डेस्टिनेशन एड्रेस भी होती है। डेस्टिनेशन मतलब वो पैकेट जब इनिशिएट हुआ था उसको जाना कहाँ है, ये एड्रेस उसमें होना चाहिए ना, तभी तो वहां जा पाएगा। अगर उसको डेस्टिनेशन ही नहीं पता होगा तो जाएगा कहाँ। तो राउटर एक इंटरमीडिएट पाथ है जो उसको स्विच करता है। जैसे आपका कोई पार्सल है, एक जनरल सा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई पार्सल है, उसको हमें किसी दूसरे जगह पे भेजना है, ठीक है, थ्रू पोस्ट ऑफिस और थ्रू एनी अदर मोड ऑफ डिलीवरी, क्लियर। तो उसको क्या करना होता है, उसको वन एंड से उसको हम पिक करते हैं और फिर वो मल्टीपल मीडियम से होते हुए, मतलब ट्रेन से या एरोप्लेन से या जैसे भी व्हाट एवर इज द कम्युनिकेशन मीडियम, उसके थ्रू वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये जो इंटरमीडिएटरी मीडियम आपके हैं, जिनसे जिनसे होके वो ट्रांसफर हो रहा है, दे आर वर्किंग एज ए व्हाट, मतलब यहाँ से जाएगा, सपोज मैंने लखनऊ से भेजा कोई पार्सल दिल्ली जाना है, तो लखनऊ से पहले वो सपोज बीच में, या लखनऊ से चेन्नई जाना है तो लखनऊ से दिल्ली गया, सपोज दिल्ली में एक बार पैकेट खुला, पैकेट चेक हुआ, मतलब हम लोग पैकेट को नहीं ओपन कर रहे हैं, वी आर जस्ट चेकिंग द एड्रेस इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंगली इट विल अगेन मूव फ्रॉम देयर, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस टू the destination side, clear? So the address information is very much important, source as well as destination means from where it is coming and to where it will go, clear? So ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो राउटर्स हमारे यही काम करते हैं कि दे एग्जैक्टली कन्वे द सेम पैकेट और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, दे ट्राई टू। तो इंटरमीडिएट राउटर्स लगे होते हैं, एक राउटर से दूसरे राउटर पे गया, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर पे गया, until it will not reaches to the destination, clear? So this is the very important part, so you all know that, clear? So routing क्या है, routing exactly एक मेथड है जो कौन फॉलो करता है, राउटर फॉलो करता है। राउटिंग किसकी होती है, पैकेट्स की होती है, डेटाग्राम की होती है, या बिट्स की होती है, कहां से कहां तक, सोर्स एंड से डेस्टिनेशन एंड की तरफ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द राउटिंग। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। Yes, sir. तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, व्हाट इज राउटिंग? मेरे क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, व्हाट इज राउटिंग? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट एग्जैक्टली एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इट डिसाइड्स द रूट टू बी टेकन बाय द पैकेट्स टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स द डेस्टिनेशन थ्रू मल्टीपल रूट्स अवेलेबल इन द नेटवर्क। ये वो रास्ता तय करता है जिसके थ्रू हमारे पैकेट को मल्टीपल, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करना है कई सारे रूट से होके, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस गिवन होता है डेटा पैकेट के अंदर, या करता राउटर फॉलो होता है। एक्सप्लेन एग्जांपल। अब देखिए राउटिंग के दो तरीके, क्लियरिंग पीडीएफ। तो एग्जैक्टली स्टैटिक एंड राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, या सो I'm just trying to tell you about the static and routing algorithm. देखिए दो तरीके की राउटिंग एल्गोरिथम हम लोगों के पास है। एक होता है नॉन एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम, जिसको हम लोग स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं। द सेकेंड वन इज एडाप्टिव और डायनेमिक एल्गोरिथम। नेटवर्क लेयर में दो तरीके की राउटिंग्स होती हैं। फर्स्ट वन इज नॉन एडाप्टिव
or static routing algorithm. Another one is adaptive or dynamic algorithm. ठीक है? If we talk about non-adaptive algorithm, ठीक है, जिसको हम लोग स्टैटिक एल्गोरिथम भी बोलते हैं, जो आपके क्वेश्चन पे पूछा गया है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एल्गोरिथम. In the static routing algorithm, the routing decisions are not based on measurements or estimates of the current traffic and topology. कहने का मतलब क्या है, जो भी किसी भी पैकेट को जो हमें मतलब राउटिंग करना, उसको ट्रांसफर करना है, उसका जो डिसीजन है वो किस पे बेस्ड नहीं होता है, आर नॉट बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स और एस्टिमेशन ऑफ द करंट ट्रैफिक एंड टोपोलॉजी. मतलब जो हमारे पास ट्रैफिक है उस पे बेस नहीं होता, जो भी मान लीजिए उस समय ट्रैफिक है नेटवर्क में, उस पे बेस हम उस पे डिसीजन नहीं लेते कि इसको किधर भेजना है. क्लियर? दिस इज टाइप ऑफ स्टैटिक राउटिंग. जो डायनेमिक राउट वो उसके अलावा क्या है कि ये राउटिंग सुटेबल होती है स्मॉल नेटवर्क के लिए. जैसे मान लीजिए कोई पैकेट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो जो उसमें राउटिंग डिसीजन होगा जो लिया जाएगा वो उस पर बेस्ड नहीं होगा कि करंट ट्रैफिक और टोपोलॉजी, मतलब जो करंट ट्रैफिक क्या है इस समय, ठीक है ना, इस पे बेस्ड नहीं होगा. ठीक है, तो ये अभी मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ. इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है स्टैटिक राउटिंग का, कि इसकी इनएबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द नेटवर्क फेलियर. जैसे मान लीजिए अगर कोई नेटवर्क में कोई पैकेट हमारा लॉस हो गया, तो ये क्विक रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा सोर्स को कि दैट द पैकेट हैज बीन लॉस्ट इमीडिएटली एंड यू नीड टू स्टॉप द सेंडिंग ऑफ पैकेट. ठीक है, सोर्स को इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा कि भाई यहाँ पे हमारा जो है पैकेट लॉस हो रहा है या हमारा कंजेशन हो गया है या सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है एंड यू नीड टू स्टॉप द transmission of packets immediately. So it is so this is very much big issue with this. Clear? There is some problem with the just wait, I'm trying to share. So और जो डायनेमिक एल्गोरिथम होता है वो क्या है, डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम चेंजेस दियर रूटिंग डिसीजन. वो क्या करता है, अगर कोई टोपोलॉजी में चेंज होगा, मतलब जो भी टोपोलॉजी आप चेंज कर रहे हैं, अगर उसमें कोई चेंज आता है, देन अकॉर्डिंगली इट विल चेंज दियर रूटिंग डिसीजन. वो अपने डिसीजंस को चेंज कर देगा. क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर टोपोलॉजी आपने कुछ चेंज किया तो इट विल चेंज द राउटिंग डिसीजन, कि मतलब वो उसको भेजना है या नहीं भेजना है, वो टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देगा अगर टोपोलॉजी में कोई चेंज किया. जैसे ट्रैफिक, जैसे टोपोलॉजी का मतलब है, मान लीजिए ट्रैफिक में अगर कोई चेंज होता है, या टोपोलॉजी मतलब टोपोलॉजी जैसे स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, तो अगर टोपोलॉजी में कोई चेंज आता है या कोई ट्रैफिक में चेंज आता है तो क्या करेगा, राउटिंग डिसीजंस को चेंज कर देगा उसके अकॉर्डिंग. तो ईच राउटर कंटिन्यूअसली चेक्स द नेटवर्क. इसमें जितने भी राउटर है वो कंटिन्यूअसली नेटवर्क को चेक करते हैं वन बाय वन. क्लियर? एंड अकॉर्डिंगली उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं. तो कंटिन्यूअसली चेक करते हैं नेटवर्क स्टेटस को बाय कम्युनिकेटिंग विद द नेबर्स. Thus change in a network topology is eventually propagated to all the routers. तो सारे routers को जो भी change होगा वो बता दिया जाएगा कि इस टोपोलॉजी में चेंज हुआ है तो आपको भी ये चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस विल कम्युनिकेटेड विद देयर नेबर्स साइमल्टेनियसली regarding any
network status change. Clear? So thus the change in a network topology is eventually propagate to all the routers based on this information gathered. So अब मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ. ये दिख रहा है सभी को? Is it visible to all of you? Hello? Yes, sir. ये सभी को दिख रहा है? किया है मैंने. Yes, sir. Okay, so what we were discussing, मैं बता देता हूँ आपको. This we was discussing. आपके क्वेश्चन में भी कवर है ट्यूटोरियल में. That is the types of routing algorithm. इसके अंदर दो एल्गोरिथम आते हैं, एक स्टैटिक एल्गोरिथम, एक डायनेमिक एल्गोरिथम. You can see. So static algorithm exactly is a non-adaptive algorithm. It is also called a static algorithm. इसको फिक्स्ड एल्गोरिथम भी बोलते हैं. ठीक है. तो दो तरीके की राउटिंग होती है हमारे सिस्टम में, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग. तो उसी पे बेस्ड है एल्गोरिथम ये. तो जो स्टैटिक होता है वो सिस्टम में फिक्स होता है, मतलब यू कांट चेंज दैट. क्लियर? तो इसमें हमारा इसीलिए हमने बताया था जो राउटिंग डिसीजंस हैं वो आर नॉट बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स और एस्टिमेट्स ऑफ द करंट ट्रैफिक एंड टोपोलॉजी, क्योंकि ये फिक्स्ड है. तो अगर मान लीजिए ट्रैफिक आपका कुछ चेंज भी होता है, करंट ट्रैफिक में कोई चेंज आ जाता है या कोई टोपोलॉजी में चेंज आता है, तो उस पर ये बेस्ड नहीं है. चेंज हो गया तो हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, वो जैसा था वैसा ही रहेगा. करंट रूटिंग मैकेनिज्म जो भी फॉलो कर रहा है वो वही फॉलो करेगा. ठीक है ना? लेकिन जो हमारा डायनेमिक होता है वो चेंजिंग है, चेंजिंग इन नेचर है. कहने का मतलब क्या है, अगर आप टोपोलॉजी में चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा नेटवर्क अभी स्टार टोपोलॉजी पे भेजा है एंड यू सपोज फॉलोइंग द मेश टोपोलॉजी. क्लियर? सो इट मींस you immediate change the mesh topology from the star topology. Either the traffic offered to the network is immediately increased or decreased. ठीक, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में क्या होगा, ये डायनेमिक एल्गोरिथम विल चेंज द राउटिंग डिसीजंस. उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो भी पैकेट आ रहा होगा उसकी राउटिंग को चेंज कर देगा, या उस पर कोई डिसीजन लेगा कि अब इसको हमको ऐसे नहीं ऐसे ट्रांसफर करना है. So this is a type of dynamic algorithm. Clear? This is the network for the static algorithm you can see, which is asked in your tutorial sheet. Here you can see route is already selected for each source and destination pair of the nodes in the network. The routes are fixed and they may only change if there is a change in the topology of the network. Clear? तो इस तरह से हमारा कुछ सिस्टम होता है, ये आप देख सकते हैं. एक सेंट्रल राउटिंग मैट्रिक्स है, इट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन लीस्ट कॉस्ट पाथ मेथड. तो एक राउटिंग टेबल आपको दिख रही होगी जो कि राउटिंग डिक्शनरी है, जिसमें हमारे इंडिविजुअल नोड्स 1 2 3 4 5 6 दीज आर द नोड्स. क्लियर? एंड वी हैव सम डिफरेंट we have some different sources and destinations like A, B, C, D, E. Clear? So this is a simple packet switching network with 6 nodes. Basically, they are working as a routers from where the data is getting access, and also the central routing table is also created based on least cost method. This is a method for तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया ट्यूटोरियल का जो कि पूछा गया था आपसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर. So now the second one is
The second one is exactly the next question was that what is flooding? फ्लडिंग आपसे पूछा गया है, क्लियर? तो फ्लडिंग में हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, राउटिंग एल्गोरिथम के एग्जांपल्स भी आपसे पूछे गए हैं. इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल्स then you if we talk about the examples then we can go here, clear? So these are the examples of the static algorithm, that is shortest path algorithm, flooding and flow based routing. These are the example of the static algorithm: shortest path algorithm, flooding and flow based routing. These are the examples of what? This particular static algorithm. ठीक है? Now the next one is the tutorial sheet is visible to all of you. No, sir. Book is visible. अच्छा नहीं visible है, एक मिनट just wait. Now I think visible to all of you, na? Okay. So the this question you also covered, that what is fixed or static routing algorithm. Now the next question is what is flooding? Clear? What is flooding? Clear? तो फ्लडिंग क्या होता है? फ्लडिंग भी हमारा एक तरह से, जैसे फ्लड मीन्स आपका इन जनरल फ्लड क्या होता है? फ्लड जैसे बाढ़ आ गया, ठीक है? तो कहीं पे जैसे यहाँ पे हम लोग उसको इस तरीके से समझेंगे कि फ्लडिंग यहाँ पे रिलेट करता है डेटा ट्रांसफर में पैकेट की एक्सेस से, क्लियर? तो जैसे मान लीजिए जो हमारा नेटवर्क है, अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको पैकेट ड्रॉ हो रहा है, दैट विल क्रिएट ओवरवेल्म कंडीशन, या ओवर या कह सकते हैं आप एक्सेसिव कंडीशन आ जाएगी पैकेट्स की इन द नेटवर्क. तो दिस इज द टाइप ऑफ व्हाट? फ्लडिंग. इसी को हम लोग फ्लडिंग बोलते हैं. और फ्लडिंग का मतलब है कि एक्सेस नेटवर्क इन द चैनल, सॉरी एक्सेस पैकेट इन द चैनल, ठीक है? दिस इज कॉल्ड द फ्लडिंग. तो इससे हमारा क्या होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि फ्लडिंग वाली कंडीशन अगर अराइज हो गई तो इसमें हमारे बहुत सारे पैकेट लॉस हो जाते हैं, ठीक है ना? या ऐसा हो सकता है कि पैकेट्स की डुप्लीकेसी हो जाए, क्योंकि अगर फ्लडिंग कंडीशन आ गई मींस चैनल की कैपेसिटी 10 पैकेट लेने की थी और सोर्स